Welcome back. This is the second video on characteristic of population. So in previous video I have discussed about the three characteristics of population. So in this video I will be discussing about the remaining three population characteristics, that is natality, mortality and life tables. तो natality को हम लोग birth rate भी बोलते हैं. Okay, and it is a simple term covering the production of new individuals of any organism. Okay, so these new individuals are born, hatched, germinated, arise by the division, etc. Okay, and in human population, however, the natality rate is equivalent to the birth rate. So natality rate is the number of offspring produced per female per unit time. So as we know, female do the reproduction. So birth rate को कैसे calculate करेंगे? So birth rate will be female per unit time में कितने number of offspring produce करती है, तो वो हो गया birth rate. Further, natality is divided into maximum natality, also called as absolute or potential or physiological natality, and another one is ecological natality, also called as fertility rate. Maximum natality means maximum birth rate. So it is the theoretical maximum production of new individuals under ideal conditions. Okay, ideal conditions में maximum प्रोडक्शन हो रहा है इंडिविजुअल्स का. तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन क्या होंगे? सो आइडियल कंडीशन मीन्स देयर विल बी नो इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स. ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग फैक्टर, जैसे कि कुछ अबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइट, फूड, टेम्परेचर वगैरह. ओके, तो यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन है वो ओनली किससे लिमिट होगा? फिजियोलॉजिकल फैक्टर. तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? फीमेल की फिजियोलॉजिकल हेल्थ. ओके, तो उसके वजह से ही यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो क्या होगा? लिमिट होगा. अदरवाइज जो आइडियल कंडीशन है उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है न्यू इंडिविजुअल्स का, उसे बोलेंगे मैक्सिमम नैटेलिटी. सो मैक्सिमम नैटेलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिकंडिटी रेट. Then ecological natality. So it is also known as simply a natality, which refers to population increase under an actual existing specific condition. ओके, जैसे कि हमने मैक्सिमम नैटेलिटी में देखा था कि एक आइडियल कंडीशन होगी, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा न्यू इंडिविजुअल्स का. बट इकोलॉजिकल नैटेलिटी में क्या है? एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में ही प्रोडक्शन हो रहा है न्यू इंडिविजुअल्स का, तो उसे बोलेंगे फर्टिलिटी रेट या फिर इकोलॉजिकल नैटेलिटी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मोर्टेलिटी, दैट इज डेथ रेट. So the number of deaths occurring in a given period, that is death per time, it is called as mortality. So it refers to the death of individual in the population. Mortality is also divided into minimum mortality and ecological or realized mortality. Minimum mortality is also called as specific or potential mortality. So it is the theoretical minimum loss under the ideal condition. Okay, so it is constant for a population. तो मिनिमम मॉर्टेलिटी मतलब क्या है? एक आइडियल कंडीशन होगी जहाँ पे लिमिटिंग इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे. तो आइडियल कंडीशन के अंडर मिनिमम लॉस हो रहा है, मतलब मिनिमम डेथ्स हो रहे हैं, तो वो हो गया मिनिमम मॉर्टेलिटी, मतलब मिनिमम डेथ रेट. Then ecological mortality or realized mortality, it is the actual loss of individuals under a given environmental condition. Okay, तो जो existing environmental condition में है उसमें individuals की death हो रही है, so that is ecological death rate.
and it is not constant but it varies with the time. Then last characteristic is life tables. Okay, so information on natality and mortality in different ages and sexes can be combined in the form of life tables. तो लाइफ टेबल में हम लोग क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सेक्स, जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है उसे हम लोग टैबुलेटेड फॉर्म में देखते हैं। ओके, तो लाइफ टेबल का यहाँ पे यूज़ क्या होगा। सो लाइफ टेबल से वन कैन डिटरमाइन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है या फिर पॉपुलेशन स्टेबल है या फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। लाइफ टेबल में क्या क्या होता है, देर आर कॉलम्स फॉर एज ऑफ इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल की एज इंडिकेट करने वाला कॉलम होता है। देन नंबर ऑफ सर्वाइविंग टू ईच एज, हर एक एज में कितने नंबर ऑफ सर्वाइवल्स है। देन द नंबर ऑफ डाइंग इन ईच एज ग्रुप। ओके, कितने एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उनकी डेथ हो रही है। देन द प्रपोर्शन डाइंग फ्रॉम द प्रीवियस एज कैटेगरी, फर्टिलिटी रेट एंड द नंबर ऑफ यंग बॉर्न बाय ईच एज ग्रुप्स। ओके, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन लाइफ टेबल्स में होती है। देन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस फिगर्स प्रोवाइड द नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग को क्या पता चलता है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का रिप्रोडक्टिव रेट पता लगता है। दैट इज ऑफस्प्रिंग लेफ्ट बाय ईच इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडिविजुअल कितने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके ओके, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ लाइफ टेबल. It is also called as net reproductive rate of population or net fertility rate. To understand the net fertility rate, we have to know about the number of females present in population. Okay? और हर फीमेल अपने लाइफ साइकिल की कौन से एज ग्रुप में है. Okay? Because female do the reproduction. ओके, टू अंडरस्टैंड द लाइफ टेबल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. जैसे कि हम लोग इस टेबल में एक पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहे हैं. ओके, पॉपुलेशन का जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 5 ईयर्स. तो यहाँ पे 5 ईयर्स का लाइफ स्पैन है एक पॉपुलेशन का. सो फर्स्ट कॉलम में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स लिखा है. ओके, सो एक्स मीन्स एज. तो एज लिखी है फ्रॉम 0 to 5 ईयर्स. तो यहाँ पे हर एक पॉपुलेशन का जो लाइफ स्पैन है वो अलग होगा. ओके, किसी पॉपुलेशन का 10 ईयर्स होगा, 20 ईयर्स होगा, जो भी है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट कि लाइफ टेबल में जो एज है वो डिफर करेगी. देन इन सेकेंड कॉलम विल पुट द एन. एन मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर एज. तो यहाँ पे हम लोग 0 ईयर में देख रहे हैं कि इनिशियली कितने इंडिविजुअल की बर्थ हुई है, 1000. ओके, देन बाय द टाइम इंडिविजुअल का नंबर कम होते जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग सिमिलर एज के जो इंडिविजुअल है उनको अकॉर्डिंग टू ईयर यहाँ पे पुट करेंगे. देन स्मॉल डी इज डेथ. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल की डेथ हुई है उसे डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ पे अगर इनिशियली हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड कॉलम में, ओके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर एज में इनिशियली 1000 इंडिविजुअल्स थे. देन सेकेंड ईयर में 500 हो गए. मतलब क्या हुआ, 1000 में से 500 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई. तो यहाँ पे 0 ईयर में क्या लिखेंगे, 500. देन सेम अदर है उनको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. एलेक्स मीन्स एज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट. तो पॉपुलेशन के लाइफ स्पैन में हर एक एज में सर्वाइवल रेट कितना है उसे बोलेंगे एलेक्स. ओके, सो एलेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे ओके तो इनिशियली 0 एज में 1000 इंडिविजुअल्स है. ओके, सो 1000 में से 1000 सर्वाइव कर रहे हैं. तो यहाँ पे आ गया 1000 अपॉन 1000 इज 1. देन फर्स्ट ईयर में 500 इंडिविजुअल्स है, मतलब 1000 में से यहाँ पे 500 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं. तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट क्या आया, 500 अपॉन 1000 इज 0.5.
Then 300 upon 1000 is 0.3, 200 upon 1000 is 0.2, 100 upon 1000 is 0.1 and 50 upon 1000 is 0.05. Then bx और mx means age specific birth rate. ओके, सो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी गिवन होती है, इसे कैलकुलेट नहीं करना होता, ठीक है. देन QX मीन्स एज स्पेसिफिक डेथ रेट. ओके, हर एक एज में डेथ स्पेसिफिक डेथ रेट कितना है, दैट इज QX. तो QX को कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, D/N. मतलब यहाँ पे इनिशियली 0 ईयर में देख रहे हैं हम लोग कि डेथ कितने हुए हैं, 500 डेथ्स हुए हैं. कितने में से, 1000 इंडिविजुअल्स में से. तो यहाँ पे 500 अपॉन 1000 तो हो गया 0.5. देन फर्स्ट ईयर में देख रहे हैं हम लोग कि 200 इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है. कितने इंडिविजुअल्स में से, 500 इंडिविजुअल्स में से. तो यहाँ पे हो गया 200 अपॉन 500. देन 100 अपॉन 300 दैट इज 0.3. देन 100 अपॉन 200 दैट इज 0.5. then 50 upon 100 again 0.5 and 50 upon 50 that is 1. लास्ट कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एज स्पेसिफिक नेट रिप्रोडक्टिव रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, हर एक एज में कितना नेट रिप्रोडक्टिव रेट है. तो इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, LX इंटू BX. तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग LX कितना है, 1 है. 1 इंटू BX इज 0 दैट इज 0. Then 0.5 into 2 is 1, 0.3 into 3 is 0.9, 0.2 into 3 is 0.6, 0.1 into 2 is 0.2 and 0.05 into 0 is 0. Okay? Okay, then उसी कॉलम में लास्ट में हम लोग इसका समेशन करेंगे, सम ऑफ LX इंटू BX. सो इनका एडिशन करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर नेट रिप्रोडक्टिव रेट. ओके, तो यहाँ पे जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है उसकी जो वैल्यू है, अगर वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो पॉपुलेशन स्टेबल है, और अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है, और अगर मोर देन 1 है वैल्यू तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो हो रही है. ओके, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है. तो यहाँ पे हम लोग इस टेबल में देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव रेट कितना है, 2.7. तो यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है. ओके, तो यहाँ पे बाय द कैलकुलेटिंग नेट रिप्रोडक्टिव रेट मतलब लाइफ टेबल से हम लोग ने क्या एस्टिमेट किया कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है या फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है या फिर पॉपुलेशन स्टेबल हो रहा है. Okay, so this was the use of life table. So based on this life table CSIR NET एग्ज़ाम में questions आते हैं, okay, from the unit ecology. So here we have discussed all the characteristics of population. So subscribe to my channel, press the bell icon for getting latest notification. Thank you.